Bismillahirrahmanirrahim. Students, continuing with the concept of exception handling that we started in the last lecture, and we had a brief overview regarding the concept of three keywords that are being provided by the C++ in their built-in exceptional handling platform. And we have gone through the concept of try, throw and catch, what is their utility and how we are going to use them. I am starting with the same concept and elaborating it in different scenarios. As you people know, in the last lecture we did an example regarding the utility or how to use the try, throw and catch keywords, and what is the syntax behind it and how to make use of it. Just revising, giving a short recap in where we use the try keyword, try block, in which we are going to make use of throw keyword, and with throw we are going to write some constant that can be of integer, float, double or character type. That is, we can also have a message here, and based upon that value it is going to move the control to the catch block, right? As soon as the throw command is being executed, the catch is the control is being given to the catch block, and all the part of the code that is being written after the throw keyword, it is not going to be executed. Now I am elaborating this concept. For example, let me define a variable here, say integer type variable I, and I am giving it a value 3. Now in case of try block, another way of doing so is that you may make use of if statement, and I may write if I equals to 1, then it should throw 1. If I is equals to 2, then it should move to throw 2. Another if statement, I equal 3, then I may write throw 3. Just giving an example that we can also make use of throw keyword that is being used conditionally. If a specific condition is true, then it should move on to the specific throw, right? Now here you can see, if I may execute this code, the catch block is containing an integer type value, right? So if it matches any one of these, then it will assign E with that specific value that can be either 1, 2 or 3, right? अगर ये तीनों की टाइप चेंज होती, int I ना होता, ये डिफरेंट वेरिएबल्स ले रही होती, तो डेफिनेटली मैं डिफरेंट कैच ब्लॉक्स बनाती, बट दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी, सेम डेटा टाइप विच इज इंटीजर, सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस int e in the catch statement. Now let's compile and see what will be the output. Now here you can see that since we have assigned 3 value to the variable I, the condition that is going to be true is the last one, because this comparison is going to be true and the first two comparisons are false. And upon the execution of this if statement, that is I equals to 3, it is true, then which command is being executed? Throw 3. Throw 3 is giving E the value 3. That is why you can see what the message that is being printed here is that exception number 3, because this condition was true, E was given the value 3. अगर I की वैल्यू 2 होती तो ये कंडीशन ट्रू होती, और आप E को क्या वैल्यू सेंड कर रहे होते 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता है? एक्सेप्शन नंबर 2, राइट? नाउ लेट्स सी अनदर ऑल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, instead of 2 here, if I may use a string, right, and instead of 3 here, let me write a floating point number, say 4.5. ठीक? Now here I have made use of multiple versions in the throw statement, right? I am throwing a integer value here, I am throwing a string constant here, I am throwing a floating point number here, right? So in case you want that
योर कैच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड irrespective of its type, यानी हम ये नहीं देख रहे इनमें से कोई भी वो ट्रू हो जाती है आपकी स्टेटमेंट और आप चाहते हैं कि उसके ट्रू होने के ऊपर वो कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए irrespective of its type, यानी हम टाइप को कंसिडर नहीं करें. जब मैं टाइप बोल रही हूँ उसका मतलब है कि किसी ऐसे कांस्टेंट की बात हो रही है जो या तो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो या कोई कैरेक्टर कांस्टेंट हो. ठीक, तो उस केस में हम इसको टाइप के साथ एसोसिएट नहीं करते. इन दैट सिनेरियो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट हेयर डॉट 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 विच इज नोन एज एलिप्सिस. राइट, ऐसा लिखने से आप टाइप कांस्टेंट कॉन्शियस नहीं हो जाते. irrespective of any type that catch block will be executed. Right, let me again, oh sorry, here E is not being declared, so we are not making use of E anymore, so let me delete it. Now let me recompile it again. Now you can see here it is working in the same manner. How the things are being executed? Again, the condition that was true is I equals to 3. Upon value throw, यहाँ पर वो किसी के साथ भी मैच कर सकता है, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो. वो हर कंडीशन के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा. किसको एग्जीक्यूट कर देगा? अपने कैच ब्लॉक के अंदर लिखे गए कोड को. इसलिए उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एक्सेप्शन नंबर. ठीक, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू 2 कर दूं, अगेन सेम वही आउटपुट आएगी. क्यों वही आउटपुट आएगी? कंडीशन इस दफा कौन सी ट्रू हुई है? ये वाली. उसने थ्रो क्या किया है? हेलो. राइट, यहां पे जो ये डॉट डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसको कुछ भी रिसीव हो जाए वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हुआ हुआ, वो इतना कॉन्शियस नहीं है कि उसको कौन सी टाइप मिली है. यानी आप यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल यूज करें ना उसको कोई वैल्यू असाइन करें. यू आर कैचिंग एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट, and any type of statement means any type of constant. Right, okay ji. Another way of doing is that if let me do one thing more. If I may write इसको डिलीट कर देते हैं. If I have written int I is equals to 1 या इसको ट्रू करवा लेते हैं 3 और यहां मैंने लिखा है थ्रो, सिर्फ थ्रो लिखा है, कोई वैल्यू साथ नहीं लिखी. ठीक, और कैच में मैंने सिर्फ लिख दिया इंटीजर. राइट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग विद I and we have not given any variable with the catch. Right, let's try run it first. I को वैल्यू क्या मिली है? 2. राइट, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी. जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब है थ्रो एग्जीक्यूट नहीं होगा. और हमने कहा था कि अगर थ्रो एग्जीक्यूट हो जाए तो थ्रो के बाद लिखा गया पार्ट ऑफ द कोड विच इज इन द ट्राई ब्लॉक वो एग्जीक्यूट नहीं होता. सिंस ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, थ्रो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इससे उसने क्या प्रिंट किया है? इन ट्राई. यानी सबसे पहले उसने प्रिंट किया वेलकम, फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर उसने प्रिंट किया इन ट्राई, और कैच भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और कैच क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि थ्रो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. राइट, और फाइनली उसने क्या प्रिंट कर दिया? लास्ट लाइन. नाउ लेट्स मेक द कंडीशन ट्रू एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. नाउ अब मैं I की वैल्यू को 3 कर देती हूँ, यानी अब ये कंडीशन ट्रू है, थ्रो एग्जीक्यूट होगा, थ्रो के बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और डेफिनेटली कैच भी एग्जीक्यूट होगा. Let's compile it. Now here you can see a very different message here. Let's understand what is meant by this. आपने थ्रो के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया था किसी भी टाइप का. राइट, और कैच के अंदर भी आपने जस्ट डेटा टाइप दी थी, कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिया था. ठीक, अपरेंटली उसने एरर कॉज नहीं किया. एरर नहीं है इस कोड के अंदर, कोड आपका रन कर रहा है, बट हम कह सकते हैं कि इसने प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की. राइट, यू कैन सी द मैसेज हेयर कि मैसेज क्या है कि टर्मिनेट कॉल्ड विदाउट एन एक्टिव एक्सेप्शन. यानी कि
टर्मिनेट फंक्शन एक तरह से कॉल हुआ है क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन उस टाइम पे हैंडल्ड नहीं थी, एक्टिव नहीं थी. ठीक, आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि आपने एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया. थ्रो के बाद आपने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा जो कि किसी स्पेसिफिक कैच के साथ मैच कर सके. आपने जस्ट डेटा टाइप लिख दी, यहाँ पे आपने इसको एम्प्टी रख दिया, जिसकी वजह से आपने थ्रो को एग्जीक्यूट तो करवा लिया, कैच को कॉल भी करवा लिया, लेकिन उसने प्रॉपरली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि थ्रो ने कंट्रोल यहां पर तो भेज दिया था, क्योंकि देखें ये कंडीशन ट्रू हुई, थ्रो एग्जीक्यूट होगा, थ्रो ने कैच को अपना कंट्रोल भेज दिया, वो इस कोड को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया. आपको नजर नहीं आ रहा इन ट्राई लिखा हुआ यहाँ पर. थ्रो के फौरन बाद कंट्रोल यहाँ पर जरूर आया है कैच ब्लॉक के अंदर, लेकिन कैच ब्लॉक के अंदर लिखा गया कोड ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. और जब कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब है एक्सेप्शन प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुई. राइट, सो it is not going to cause an error, but it is not going to execute properly. Right, so with the throw you have to write some sort of constant, with catch you have to give some sort of variable that is going to catch a specific value which is being thrown by the throw keyword. Okay ji, one more thing that can be done in case of try, catch and throw statements. Another way of doing that, for example हम इसी को ले लेते हैं कि if I is equals to 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं try block के अंदर throw नहीं लिखती, I can write make use of a function here. ठीक, कोई भी fun function है. ठीक, डेफिनेटली आपको इसके ऊपर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. और ये जो fun function है, इसको मैं ये मेन फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रही हूँ और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ थ्रो 5 फॉर एग्जाम्पल. ठीक, और कैच में हम इंट ई दे देते हैं. राइट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कीवर्ड यूज नहीं किया. ठीक, अभी तक हमने जितनी इसके वर्जन्स किए थे, एग्जांपल्स की थी, उसमें हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कीवर्ड यूज किया था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के ट्रू होने पर मैंने थ्रो लिखने के बजाय एक फंक्शन को कॉल कर दिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन को. ठीक, वो फन फंक्शन कॉल हुआ. फन फंक्शन के कॉल होने पर उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, थ्रो कीवर्ड. सो अगर आप ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कीवर्ड नहीं भी यूज करते, आप किसी फंक्शन में यूज करते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न में काम करेगा जैसे ये पहले काम करा था. फर्क सिर्फ क्या है कि आपने थ्रो कीवर्ड यहां नहीं लिखा, रादर वो एक फंक्शन को कॉल करवाकर उसके प्रेमिसेस में वो लिखा हुआ है. ठीक, तो यहां से कंट्रोल आपका फन फंक्शन से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, और फन फंक्शन की बॉडी में जब एग्जीक्यूशन होगी और ये थ्रो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये किसको कॉल कर देगा, कैच को. राइट, सो एक इनडायरेक्ट आप समझ लें कि ट्रैक यहां पर आ गया है, बट इट इज गोइंग टू परफॉर्म एग्जैक्टली इन द सेम मैनर. इसमें कोई एम्बिग्यूटी यहां पे एरर नहीं आएगा. सो दीज आर ऑल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन मेक यूज ऑफ while making use of try, throw and catch keywords. Sorry, let me move it here. So making a more concept regarding the throw and catch keywords and try statements. Throwing exception में आप basically एक्सेप्शन के साथ डील कर रहे होते हैं कि अगर एक्सेप्शन अगर अकर हुई है तो उसके साथ उसको कैसे हैंडल करना है. सो एक्सेप्शंस कैन बी थ्रोन एनीवेयर विद इन अ कोड ब्लॉक मेकिंग यूज ऑफ थ्रो स्टेटमेंट. राइट, द ऑपरेंड ऑफ द थ्रो स्टेटमेंट डिटरमिन्स अ टाइप फॉर द एक्सेप्शन एंड कैन बी एनी एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने बताया था कि फ्लोट, डबल, कैरेक्टर टाइप कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है. नाउ कैच द एक्सेप्शन. The catch block following the try block catches any exception, right? Catch and try, they go side by side. Upon the end of the try block, there should be a catch block, right?
and you can specify what type of exception you want to catch, and that is determined by the exception declaration that appears in the parenthesis following the keyword catch. बिकॉज कैच का सिंटेक्स रिजेंबल करता है फंक्शन के सिंटेक्स को, तो यहाँ पे आपने जिस किस्म की एक्सेप्शन हैंडल करनी थी, वो कोई इंटीजर टाइप थी, वो कोई मैसेज था, वट एवर इट वॉज, वो एक्सेप्शन का टाइप बेसिकली यहाँ पे लिख दिया जाता है. ठीक, जो थ्रो के साथ लिखी हुई एक्सप्रेशन इसके साथ मैच करती है वो ही कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. अगेन देयर कैन बी मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, बट उनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा अपॉन मैचिंग. राइट, अगर वो नहीं मैच होता तो डेफिनेटली वो कोई भी उनमें से एग्जीक्यूट नहीं होगा. कोई एक मैच हो जाता है तो बाकी उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. एग्जीक्यूट एक वक्त में एक होगा, बट कोडिंग में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं. नाउ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जिसको मैंने अभी एलेबरेट भी किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कैच ब्लॉक किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर ले, आप उसको इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर के साथ स्पेसिफाई नहीं करें, यानी अपने कांस्टेंट के साथ उसको एसोसिएट नहीं करवा रहे, देन विद इन द पेरेंथेसिस ऑफ द कैच ब्लॉक यू आर गोइंग टू राइट एलिप्सिस दैट इज डॉट डॉट डॉट. उस केस में वो किसी भी किस्म की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा. कहने का मकसद ये है कि थ्रो के बाद आपने जो भी लिखा हुआ है, अगर मल्टीपल थ्रोज थे आपके पास, तो उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए वो एक ही कैच ब्लॉक में जाएगा. आपने थ्रो 10 लिखा था, थ्रो हेलो लिखा था, थ्रो 5.8 लिखा था, तीनों केसेस में उसने एक ही कैच ब्लॉक में आकर लैंड करना है, और वो कैच ब्लॉक सिंगल कैच ब्लॉक होगा दैट इज गोइंग टू हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन. नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट विल elaborate the concept of exception handling and how we are going to handle an exception by making use of these three keywords. Right? Okay, let me compile it in the dev compiler so that things are more clear to you people. I have written that the same code here. In this code I have made a function with the name Devian, whose return type is double, and it is taking two arguments of type int, that is a and b. Right? Within the body of the function, first I am making use of a if condition, that is the b checking if b is equals to 0. ये जो second argument है इसको चेक किया जा रहा है कि वो 0 के इक्वल तो नहीं है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक थ्रो का कीवर्ड यूज किया, यानी एक्सेप्शन थ्रो होगी, और वहां पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है कि डिवीजन बाय 0 कंडीशन. राइट, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा a डिवाइडेड बाई b. राइट, यानी हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमने एक डिवीजन क्या एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं कि a और b दो इंटीजर्स हैं जिनको हमने डिवाइड करना है, और हमारा कोड उस सूरत में एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर हमारा सेकंड वाला वेरिएबल, सेकंड वाला पैरामीटर b जो है वो 0 हो जाता है. यानी हम ओवरऑल कर क्या रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड a बाय b, दैट इज a डिवाइडेड बाय b, सो b शुड नॉट बी 0, बिकॉज अगर b 0 है तो डेफिनेटली वो एम्बिगुअस रिजल्ट देगा, अनडिफाइंड वैल्यू देगा. तो हम चाह रहे हैं कि b को 0 नहीं होना चाहिए. अगर यूजर गलती से 0 दे देता है तो उसी वक्त हमारा कोड एक मैसेज प्रिंट करवा दे कि दिस डिवीजन इज बीइंग कैरिड आउट बाय अ 0 कंडीशन. राइट, इफ नॉट, अगर a और b दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, देन इट इज सिंपली गोइंग टू रिटर्न अस द रिजल्ट ऑफ a डिवाइडेड बाय b. यहां पे खत्म हो रहा है आपका ये जो डिवीजन का फंक्शन है. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल्स बनाए x और y, और अभी मैंने अपेरेंटली उसको वैल्यूज असाइन कर दी हैं. x को मैंने असाइन किया 50, y को मैंने असाइन किया है 0, और एक वेरिएबल बना दिया एक डबल टाइप का z that is being initialized by 0. और इनफैक्ट z वो वेरिएबल है जो कि उस वैल्यू को कंटेन करेगा जो डिवीजन फंक्शन रिटर्न करेगा. देखिए डिवीजन फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, डबल है, तो मुझे डेफिनेटली z को भी क्या रखना चाहिए था, डबल ही रखना चाहिए था. नाउ इन द ट्राई ब्लॉक यू कैन सी आई हैवंट मेक यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड. ये सेम वही चीज है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोली थी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर आप अगर थ्रो कीवर्ड नहीं यूज कर रहे, वो मैंने थ्रो कीवर्ड कहाँ यूज किया, मैंने डिवीजन
फंक्शन के अंदर यूज किया उसको। ठीक, तो फर्स्ट केस में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैंने डिवीजन फंक्शन को कॉल किया है। जी के अंदर वो वैल्यू कंटेन होगी जो डिवीजन वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। ठीक, और डिवीजन फंक्शन को मैंने पास क्या किए, आर्ग्यूमेंट्स पास किए, किसके लिए, ए और बी के लिए। और कौन सी वैल्यूज पास की मैंने, एक्स और वाई। एक्स में वैल्यू क्या है 50, वाई में वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ पर ए को क्या मिल रहा है 50, बी को क्या मिल रहा है 0। ठीक, और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया। इनफैक्ट सॉरी, इसके बाद मैं सी आउट करवा रही हूँ जी की वैल्यू को, और फिर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया। और ट्राई ब्लॉक के खत्म होने के साथ यहाँ पे आ गई कैच स्टेटमेंट। राइट, तो कैच ब्लॉक के अंदर मैंने एक कांस्टेंट टाइप मैसेज रखा हुआ है, एक यानी स्ट्रिंग रखी हुई है, यूं समझ लें आप, ऑफ साइज 44। और जो कुछ यहाँ पे कैच होगा, यानी क्योंकि देखें थ्रो क्या कर रहा है, थ्रो एक स्ट्रिंग टाइप मैसेज भेज रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट 10 या 20 की वैल्यू नहीं भेज रहा, वो एक स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट भेज रहा है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर ही यहाँ पे रखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट रख दूंगी तो वो डेफिनेटली मिसमैच है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे थ्रो 10 लिख रही होती तो फिर मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखती, इंट, कोई भी वेरिएबल बना देती। बट दिस टाइम आई एम टेकिंग अ मैसेज फ्रॉम द थ्रो स्टेटमेंट, और यहाँ पे सी आउट, वो जो मैसेज यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स कंपाइल इट एंड सी व्हाट विल बी द आउटपुट। नाउ हियर यू कैन सी, जब आपने x को 50 और y को 0 पास किया तो इस केस में आके उसने b को जो वैल्यू रिसीव हुई थी वो क्या थी, 0 थी। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। कंडीशन के ट्रू होने पे थ्रो एग्जीक्यूट हुआ, और थ्रो ने ये पूरा मैसेज किसको भेज दिया, इस कैच स्टेट ब्लॉक को। राइट, यानी इस मैसेज टाइप जो स्ट्रिंग बना हुआ है, वेरिएबल बना हुआ है, उसके अंदर क्या रिसीव हुआ, डिवीजन बाय 0 कंडीशन, और वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिवीजन बाय 0 कंडीशन। राइट, अनदर वे ऑफ डूइंग दिस कैन बी कि अगर आप ये मैसेज टाइप एरे टाइप स्ट्रिंग ना बनाएं, आप यहाँ पे इसको एज अ पॉइंटर ले लें। राइट, यानी मैंने कैरेक्टर कांस्टेंट बनाया है, ठीक है, जो कि पॉइंटर टाइप का है, और उसका नाम क्या है, मैसेज। ठीक, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क इन द सेम मैनर। राइट, क्योंकि अगर आपने ये स्ट्रिंग्स और एरेस का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि जो स्ट्रिंग का नाम होता है, राइट, जैसे अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई थी अभी, जैसे मैसेज थी 44 साइज था उसका, तो जो MSG है जो कि नाम है स्ट्रिंग का, कैरेक्टर टाइप एक एरे है, वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह कोई आपने बेशक इंटीजर टाइप एरे भी बनाई थी, तो एरे का नाम बेसिकली क्या होता है, उसका बेस एड्रेस होता है। तो चाहे आप एरे के फॉर्म में उसका सिंटेक्स लिखें या आप एक पॉइंटर बना दें, इट इज गोइंग टू वर्क इन द सेम मैनर। राइट, ओके, लेट्स डू अनदर थिंग। This time I am going to pass a value 10 instead of 0. ठीक, यानी अब हम डिवीजन बाय 0 नहीं करवा रहे। Let's see what will be the output. Here you can see the output is 5. Right? How this has happened? This time आपने जो A और B को वैल्यूज दी थी, A को रिसीव हुआ 50, B को रिसीव हुआ 10। यहाँ पे जब उसने इस कंडीशन को चेक किया तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। आपको B जो है, जो आपका डिनोमिनेटर था, वो 0 नहीं मिला। जब ये 0 नहीं मिला तो इसका मतलब है ये जो थ्रो ब्लॉक था, स्टेटमेंट थी, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, और उसने क्या रिटर्न कर दिया, ये पूरा ब्लॉक ओमिट हो गया। वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आया, उसने रिटर्न कर दिया A डिवाइडेड बाई B का रिजल्ट, यानी 50 को 10 से डिवाइड किया और आंसर क्या आया 5, और वही चीज यहाँ पे रिटर्न कर दी। सो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक में डेफिनेटली वो क्या है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में ही डिवीजन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद जी के अंदर वैल्यू आई 5, और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। क्या चीज इस केस में एग्जीक्यूट नहीं हुई, इस केस में थ्रो और कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों, क्योंकि ट्राई ब्लॉक ही वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप उस पार्ट ऑफ द कोड को रखते हैं, या उस फंक्शन को रखते हैं, या किसी भी चंक को रखते हैं जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन आने का चांस होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने किसको प्लेस किया था, डिवीजन को प्लेस किया था। क्यों, उसमें क्या एक्सेप्शन रेज हो सकती थी, उसमें एक्सेप्शन ये रेज हो सकती थी कि मैं कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं दे रही। सो मैंने उस पार्ट ऑफ कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से ना थ्रो एग्जीक्यूट हुआ ना कैच एग्जीक्यूट हुआ।
हाँ, अगर एक्सेप्शन आती तो डेफिनेटली वो थ्रो को भी एग्जीक्यूट करता, कैच को भी एग्जीक्यूट करता, राइट? So this brings me to the end of the series of lectures related to object oriented programming, and this was our last topic, that was exception handling. If you people have any queries regarding it, do let me know. This concept is very very important, a bit tricky, but it has number of variations जिसमें आप इसको use कर सकते हैं. Thank you.